Okay, so in the last class, we discussed first important term, that is about assessment year and previous year. Okay, so every person's earned income during the previous year is charged in the assessment year at the rates applicable for assessment year, right? So next important term is about person. So person includes an individual, that is a natural human person, a Hindu undivided family, a company, a firm, firm means a partnership firm, or an association of person or body of individuals, whether incorporated or not, a local authority, and every artificial juridical person not falling within any of the preceding categories, like a public corporation established under special act of legislature and a body having juristic personality of its own, for example universities. All your universities comes under artificial juridical person. ठीक है, so these are the 7 categories of person, but this particular list is inclusive list. Okay, this is not exhaustive list, which means that even if any person or any category which is abide to pay the taxes to the government will be included in this definition, whether it comes under any of the 7 categories or not. It means it's an inclusive list, it is not exhaustive. कोई और सपोज इन फ्यूचर कोई और ऐसी कैटेगरी निकल कर आ जाती है तो उस कैटेगरी को भी हम पर्सन की तरह ही ट्रीट करेंगे. ठीक है, सो अ पर्सन डजंट जस्ट इंक्लूड अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, it also includes a partnership, it also includes the Hindu undivided family, it also includes company, local authority, any association of person or body of individual, any artificial juridical person. और इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो भी इसमें इंक्लूड है. सो पर्सन इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. ठीक है, अब हमेशा याद रखना इस पूरे इनकम टैक्स के पेपर में जहां पे भी पर्सन आएगा वो पर्सन इन सारी चीजों की बात कर रहा है. ठीक है, वो खाली इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है. ठीक है, सो पर्सन इंक्लूड्स all these 7 categories or any category which is left to be included in these 7 categories. ठीक है, so suppose this is the example and these are the question. Now you have to tell me which particular thing will fall in which particular category of the person. Delhi University. ठीक है, I'm giving you 2 minutes of time. Just see this question and tell me in your comment that what you think, what will be Delhi University, what in which category the Delhi University will fall, in which category DCM Limited, Delhi Municipal Corporation, Taxman Publication Private Limited, Tanvi Commercial Bank Limited, XYZ Group Housing Cooperative Societies, ABN Company, a firm of A and B, a joint family business of X, Mrs. X and their sons, and the last one A and B, who are legal heirs of C. C died in 1996, and A and B carry on his business without entering into partnership. So just take a screenshot of this question. Okay, take a screenshot of this question and also take a screenshot of this categories. Okay, these are the 7 categories. और कमेंट में लिखो आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी किस में फिट होगी. First, Delhi University's artificial juridical person. Very good. What about others? Yes. Delhi University, since it's a university, it has its separate identity, so it will fall under artificial juridical person.
So the answer for first category is artificial juridical person. What is about next? DCM Limited. DCM Limited, a company. Okay. Tanu is also saying a company. अच्छा, tell me, खाली श्रुति तनु बताएंगे क्या मुझे? Okay, Manvi, Mansi, Kalpana, very good. So DCM Limited falls under the category of company. Okay. What about next? Delhi Municipal Corporation. What about Delhi Municipal Corporation? Okay, Tanu said about local authorities. Local authority. Okay, perfect. Perfect. Yes. So Delhi Municipal Corporation is a local authority. Next, Taxman Publication Private Limited. Okay, Taxman Company. Okay, perfect. Next, Tanvi Commercial Bank Limited. Taxman is fine, it is company. Next, Tanvi Commercial Bank Limited. Okay, so fifth one, yes, Tanvi Commercial Bank is a company. Okay, next is XYZ Group Housing Corporate Society. So what would be its answer? XYZ Group Housing Cooperative Society. So in which category? A person or body of individuals, whether incorporated. Very good. So it will fall under a association of person or body of individuals, whether incorporated or not. ठीक है. AB and Company, a firm of A and B. AB and Company, a firm of A and B. Okay. Anirudh said firm. Firm. Right. So it's a partnership firm. Very good. Next is a joint family business of X, Mrs. X, and their sons. It's a HUF. Yes. It's a Hindu undivided family. Very good. And the last one, A and B, who are legal heirs of C. C died in 1996, and A and B carried on his business without entering into partnership. So it is firm, HUF, association of persons, A and B, है ना? Yes, so it is an association of persons. It's not a partnership firm. They are the legal heirs of C. So C का जो business था वो दोनों A and B ने चलाया, तो A and B is basically an association of person. ठीक है, so most of you have answered me correctly. Ma'am. Yes. Ma'am, how we can difference between artificial juridical person or a local authority? Beta, local authority, तो it's a government entity. Right, it's a government entity which has given certain kind of local jurisdiction to some, जो हमारी बिग गवर्नमेंट होती है वो छोटी छोटी गवर्नमेंट्स जो होती है ना उनको एक लोकल जुरिस्डिक्शन देते हैं. जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को एक पर्टिकुलर एरिया की अथॉरिटी होती है. इट इज द गवर्नमेंट एंटिटी विच हैज बीन गिवन द लोकल जुरिस्डिक्शन कि आप इस लोकल जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है इसमें यू आर एम्पावर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज.
वो लोकल अथॉरिटी होती है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इज बेसिकली एन एंटिटी विच हैज बीन गिवन एन एक्सप्लिसिट राइट्स। आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल्दो इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट हैज अ सेपरेट एक्ट। एक यूनिवर्सिटी एक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करती है। ठीक है, तो आपने उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी दी हुई है। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज को यू हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी। आपने एक एरिया के लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया, एक गवर्नमेंट मतलब एक प्रॉपर एक अथॉरिटी बनाई है बाय गवर्नमेंट जो उस पूरे एरिया को डेवलप करेगी। ठीक है, वो लोकल अथॉरिटी होती है। क्लियर है? जैसे काफी बार पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू कुछ कोई चीज अगर जैसे कोई कॉर्पोरेशन या किसी भी चीज को एक स्पेशल राइट दिए जाते हैं, कोई रिकॉग्निशन दी जाती है, तो वो सारे आपके आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस में आ जाते हैं। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है, okay, so now the next important term is assessee. So as per section 2 subsection 7 of the Income Tax Act 1961, unless the context otherwise requires, the term assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act and includes. So assessee is a person who have to pay tax or any other sum of money. It could be anything. Any other sum of money means कोई penalty या कोई भी काइंड ऑफ कोई चार्ज, अगर कुछ भी ऐसा उसके इनकम पे कुछ लगा हुआ है और उसको उस पे टैक्स पे करना है, या फिर कोई ऑब्लिगेशन, कोई उस पे कोई इंटरेस्ट लगाया गया है जो उसको पे करना है, सो एनी काइंड ऑफ अमाउंट ऑन विच the tax or something other in the form of interest or some obligation which is being put on any person, that person will be known as assessee. ठीक है, इन शॉर्ट जिसको पे करना है गवर्नमेंट को वो असेसी है। और वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वो 4 कैटेगरीज को इंक्लूड करता है। फर्स्ट कैटेगरी इज द पर्सन by whom any tax or any other sum of money including interest and penalty is payable under the act, irrespective of the fact whether any proceeding under the act has been taken against him or not. So for example, I being a salaried person, I belong in the first category. ठीक है, that whatever income I earn during the year, I pay the tax to the government, so I am a first category assessee. कोई प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट इनिशिएट नहीं हुई है, तो चाहे हो चाहे ना हो, बट आई एम रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो आई एम एसएससी। ठीक है, सपोज कोई पर्सन टैक्स नहीं पे करता है, तो जब टैक्स पे नहीं करता है और गवर्नमेंट को कहीं से, टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन आती है कि ये पर्सन की इनकम ज्यादा है, हमारा जो भी मिनिमम स्लैब है उससे ज्यादा है और उसको टैक्स पे करना चाहिए, तो उस केस में जो प्रोसीडिंग इनिशिएट, जब पता लगता है कि हाँ इसको टैक्स पे करना है, तो वो असेस वो डिफॉल्ट बेसिकली, अभी आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। बट कैटेगरी में क्या होता है कि जिसको टैक्स पे करना है, भले ही उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग शुरू हुई हो चाहे ना हुई हो, वो असेसी। सॉरी, second category, a person in respect of whom any proceedings under the act has been taken, whether any tax, interest or penalty. इसका मतलब अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने स्टार्ट करवाई है कि आप इसकी इनकम को एक्सेस करो, चेक करो कि इसकी इनकम कितनी इनकम है, तो उस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं, भले ही आगे उसका रिजल्ट कुछ भी निकले, भले ही वो लायबल हो टैक्स के चाहे ना हो, भले ही उसको इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी हो या ना कर रही हो, बस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं उसके अगेंस्ट, तो इसीलिए टैक्स में उसको असेसी माना जाएगा। सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी, असेसी। ठीक है, और कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स होती है? ईदर फॉर द असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज इनकम और द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम, सो उसकी इनकम लॉस उसकी प्रॉपर असेसमेंट करना, या फिर ऑफ द इनकम और लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ही इज एक्सेसिबल। सो आपके असेसीज में ना टाइप्स होती हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेबल असेसी, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई है तो उसको असेसी माना जाएगा. रिप्रेजेंटेड असेसी इज अ सेकंड कैटेगरी असेसी. Third one is the amount of refund due to him or to such other person. इसका मतलब प्रोसीडिंग्स इसलिए इनिशिएट करी गई हैं कि आप इसको रिफंड मिलेगा. एक बार चेक करो कि वेदर इसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, चाहे उनका कुछ भी आउटकम हो, दैट पर्सन विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेसी. सेकेंड कैटेगरी डेफिनेशन ऑफ एक्सेसी. ठीक है. व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी? थर्ड सॉरी थर्ड कैटेगरी एसएससी क्या होता है? हु इज डीम्ड टू बी एन एक्सेसी. समटाइम्स क्या होते हैं, कोई माइनर होता है, ठीक है, उसकी इनकम आप माइनर को चार्ज नहीं कर सकते हो. तो माइनर जो भी उसका वो होता है ना, जो भी उसका केयर टेकर होता है, या जो भी उसके उसके जो पेरेंट्स होते हैं जो उसके बिहाफ पे टैक्स करते हैं, तो उनको डीम टू बी एन एक्सेसी बोला जाता है. ठीक है, कि या फिर कोई ल्यूनेटिक पर्सन है, ठीक है, या कोई मेंटली अनस्टेबल पर्सन है, सो उसके पास कोई इनकम है जिसपे टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, सो उसका जो भी केयर टेकर होगा, दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी. ठीक है. सो डीम टू एन एसएससी ऑल्सो कम्स अंडर थर्ड कैटेगरी ऑफ एसएससी. उसको भी एसएससी माना जाता है, क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट होगा, कोई भी डिफॉल्ट होगा किसी भी चीज में, टैक्स की प्रोसीडिंग्स में, तो दैट पर्सन विल बी लायबल, डीम टू बी एन एसएससी. माइनर नहीं होगा, ल्यूनेटिक नहीं होगा, मेंटली अनस्टेबल पर्सन नहीं होगा, deemed to be an assessee will be the actual assessee in that case. Fourth category is every person who is deemed to be an assessee in default. It means अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सैलरीड पर्सन और मेरे को जो सैलरी मिलती है ना, दिस ऑलवेज बी आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स. ठीक है. टैक्स डिडक्ट एट सोर्स करके कंसेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपको पेमेंट कर रहा है ना, वो टैक्स कट करके पेमेंट करेगा. ठीक है. सो इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द टैक्स ऑन माई बिहाफ एंड पे द सेम टू द गवर्नमेंट. ठीक है. और अगर वो उसमें फॉल्ट करता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एक्सेसी इन डिफॉल्ट. ठीक है. सिमिलरली बैंक्स होते हैं, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई फिक्स डिपॉजिट शुरू कराया और वो काफी ज्यादा अमाउंट का था, उसमें मेरा इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा था. तो उस केस में जब भी मुझे इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, जो बैंक है वो मेरा टैक्स कट करके मुझे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पेयर. हूसोएवर इज पेइंग द मनी टू द पर्सन, he has to deduct the tax and have to submit the same to the government. So it is a responsibility on the part of the payer. So अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट. ठीक है. और वो भी असेसी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा अंडर द फोर्थ कैटेगरी. ठीक है. सो दीज आर द 4 कैटेगरीज विच आर गिवन अंडर योर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसी लैंग्वेज में यू हैव टू राइट. But for your understanding purpose, there are simply 4 categories of assessee. ठीक है. Normal assessee, representative assessee, deemed assessee and assessee in default. Normal assessee is an individual who is liable to pay taxes for the income earned by him for a particular financial year. So he's a normal assessee. It means he's a normal person. Person includes all the 7 categories of person. ठीक है. So जिसको भी पे करना है टैक्स, जो उसने इनकम अर्न करी है, ही इज अ नॉर्मल असेसी. ठीक है. जैसे इससे पहले वाली फर्स्ट कैटेगरी में लिखा था, ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई थी, वेदर इनकम वेदर एनी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम और नॉट. ठीक है. तो यूजुअली प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होती. नॉर्मल असेसी इज द पर्सन हु नोज दैट ही हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव असेसीज क्या होते हैं? समटाइम्स the individual is liable to pay taxes for income or losses incurred not only by him but also for income or loss incurred by a third party. So usually people who need representatives are non-residents, minors or lunatics. So they need some person who will represent them. ठीक है. उनको represent करने के लिए कोई assessee होता है जो actual में सारा उनका जो भी एक नॉर्मल असेसी का काम होता है वो सारा काम करते हैं, और उसके बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं.
So these comes under the definition of representative assessees. They are representing someone. Deemed assessees are the person who are you know, which the government put that particular person in a position to pay taxes for some other person. Okay? So this is a deemed, means eyes of the government, means government उसको deemed assessee कर रही है, उसको ये बोल रही है कि तुम मतलब तुम जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल तुम गार्जियन हो माइनर के, माइनर ने इनकम अर्न करी, तो माइनर इज नॉट गोइंग टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. You are the person, you are the guardian, you are the caretaker, you are responsible for paying the taxes on the income earned by the minor. So ये सारे deemed assessee होते हैं. It means there is no contract as such between the person and between whosoever is representing. There is no contract. Representative assessee में क्या होता है, एक full fledged contract होता है कि आपको मुझे represent करना है. Deemed assessee में कोई contract नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको deemed assessee मानती है. ठीक है, कि आप इस पोजीशन पे हो कि आपको पे करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल the executors or legal heir of the property of a deceased person who in return has passed on his property to the executor. अब कोई एक्सपायर हो गया और उसने अपनी प्रॉपर्टी उसकी लीगल हेयर के पास ट्रांसफर हो गई है. सो लीगल हेयर इज हु, ही इज द डीम्ड असेसी नाउ, क्योंकि जो मर गया उसको तो गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स ना टू पे द टैक्स. तो एग्जीक्यूटर or the legal heir will pay the tax on his behalf. Similarly, suppose कोई मर गया और उसकी प्रॉपर्टी इज बीइंग नाउ ट्रांसफर टू द एल्डेस्ट सन. उसके 4 बच्चे थे बट उसके एल्डेस्ट सन को इट इज बीइंग नाउ ट्रांसफर्ड. तो जिसको ट्रांसफर हुई है दैट पर्सन will be considered as the deemed assessee. Sometimes whether it is transferred or not, the eldest son is always considered as the deemed assessee in the eyes of the law. कि जो भी eldest son होगा that person will have to pay taxes. ठीक है, या फिर the guardian of minor, lunatic or unsound mind, या फिर the agent of a non-resident Indian. ठीक है, any person whose income is not in India, उसके बिहाफ पे कोई एजेंट इंडिया में काम कर रहा है, तो एजेंट इज द डीम्ड असेसी. ठीक है, सो यूजुअली द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन डीम्ड असेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव असेसी. सो देयर इज अ सिंपल रूल इन देयर डिस्टिंग्विशमेंट इज दैट रिप्रेजेंटेटिव असेसी हैज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट. द पर्सन हिमसेल्फ has agreed to represent that particular person in terms of paying taxes to the government. Deemed assessee mein the person has not agreed. The government is in their eyes putting that person in the place of the assessee, that you are the deemed assessee. ठीक है, जैसे कोई मर गया तो उसके eldest son की responsibility है that he has to pay taxes to the government. ठीक है, so he is a deemed assessee whether the property is actually transferred or is in the process of transferred to other son or not. ठीक है, it is not actually matter, eldest son is responsible. but हाँ, उसी केस में अगर सारी प्रॉपर्टी उसके छोटे बेटे के ट्रांसफर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है सारी ट्रांसफर, तो उसके बाद छोटा बेटा है. बट जब तक कुछ नहीं होता, जब तक एल्डेस्ट सन को ही डीम्ड असेसी माना जाता है. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स. The last one is assessee in default. Sorry. So assessee in default is an individual who has failed to fulfill his legal duty of paying taxes to the government. So whosoever has default, that person is considered as assessee in default. Okay? So person means all the 7 categories of person. So in a normal scenario, the assessee includes all these 4 categories. ठीक है, normal assessee, representative assessee, deemed assessee and assessee in default. So this particular slide is in layman terms, but if the question comes in your exam, you can directly write whatever is written under the section 227 of 27 of the Income Tax Act 1961. ठीक है, but all these things are leading to these 4 categories only. Anyone having any doubt regarding to the explanations of categories? Ma'am, can you repeat the third case? No, ma'am. Which case, beta? Third deemed one? बेटा deemed assessee क्या होता है?
जिसको मान लिया जाता है, ठीक है, कि यही एसएससी है। ठीक है, जो जब जब असेसमेंट होता है ना, यूजुअली जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो एक असेसमेंट ऑफिसर होता है, वो असेसमेंट ऑफिसर हमारा पूरा असेसमेंट देखता है कि हाँ इसने जो जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं जब आईटीआर करवाऊंगी ना, जब आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैचिंग होती है। तो यहाँ पे बस कैटेगरीज में ये बात हो रही है कि काफी बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट तब भी उसको डीम्ड एसएससी माना जाता है। अब सपोज कोई माइनर है, ठीक है, चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं जो मतलब आर्टिस्ट तो इज अ सेपरेट थिंग, क्योंकि उसमें और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आ जाती है। अभी फॉरगेट अबाउट चाइल्ड आर्टिस्ट। कोई ऐसे ही माइनर है और उसको ना बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और उससे ना उसको काफी ज्यादा इनकम आती है। सपोज उसके पास बहुत हाउस प्रॉपर्टीज हैं और उसको रेंट आता है, माइनर को आता है रेंट, ठीक है। तो माइनर इज नॉट गोइंग टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें जो उसका गार्जियन होगा उसको डीम्ड एसएससी माना जाएगा। इसमें माइनर नॉर्मल एसएससी नहीं बन सकता, बिकॉज ही इज वेरी स्मॉल, he cannot file the returns to the government, he cannot pay tax to the government. So whosoever is a guardian, that person will be considered as a deemed assessee, ठीक है। अब सपोज ड्यूरिंग द ईयर एक पर्सन था और उसके पास बहुत ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज थी एंड ही एक्सपायर्ड, ठीक है। अब एकदम से वो चला गया तो उसने प्रॉपर्टी किसी बच्चे के नाम नहीं करी थी, 4 बच्चे थे उसके, किसी को भी नाम नहीं करी उसके, लेकिन उसको जो भी इनकम आ रही है उस पर टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, हाउस प्रॉपर्टी से उसकी इनकम आ रही है। सो उस केस में उसके एल्डेस्ट सन को कंसिडर किया जाएगा ही एज अ डीम्ड एसेसी, नाउ ही इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर उसका एल्डेस्ट सन नहीं करेगा सपोज पे, तो वो फोर्थ कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा, मींस असेसी इन डिफॉल्ट, means the person who is required to pay taxes to the government but he has not paid the taxes, so he is assessee in default. बट अगर सिमिलर एग्जाम्पल में अगर सपोज वो जो इंडिविजुअल एक्सपायर हुआ था वो अपने थर्ड सन को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके गया था, ठीक है, तो उस केस में जब ट्रांसफर हो गया है ऑलरेडी, तब तो जो जो भी वो पर्सन होगा थर्ड जो उसका बेटा था, he will be considered as a normal assessee, फिर वो deemed assessee नहीं माना जाएगा, because all the transfer formalities is complete. Now the owner is not the person who expired, the third son is the owner, so he will be considered as a normal assessee. Deemed assessee वो कैटेगरी होती है जिसमें assessee या तो होता नहीं है या फिर lunatic होता है या फिर अनसाउंड माइंड होता है या फिर माइनर होता है, मतलब वो है पिक्चर में बट वो टैक्स नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है। अब कोई मर गया तो वो कहां से टैक्स पे कर देगा, ठीक है। तो उस केस में उसके एल्डेस्ट सन को रिस्पॉन्सिबल कर दिया है, या फिर जो गार्जियन है इन केस ऑफ माइनर्स उनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि आप डीम्ड असेसी हो, आप भरो उनके बिहाफ पे टैक्स, ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट है, उसने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रखा है इंडिया में, कोई उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तब उसके बिहाफ पे कौन टैक्स पे करेगा, उसका जो भी एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो एजेंट इज कंसिडर्ड एज अ डीम्ड असेसी। वही केस पे अगर वो किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता तो जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बन जाता, वो उसके बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करके उसको टैक्स पे कर देता। सो दिस इज द माइनर डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज 4 कैटेगरीज, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि वो किस पोजीशन पे है इस टाइम पे, जो कंडीशन है वो कंडीशन किस तरीके किस तरीके से इशारा कर रही है कि उसको क्या तुम्हें किस कैटेगरी में तुम्हें उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। एंड डोंट वरी, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, ज्यादा से ज्यादा यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन थ्योरेटिकल पार्ट ओनली दैट यू हैव टू एक्सप्लेन एसएससी एंड इट्स कैटेगरीज, नथिंग मोर देन दैट। Is it clear? Should I move forward? Ma'am, Yes, ma'am. ma'am, I just had one doubt in this representative assessee. In case the individual is paying the taxes to the government and also they have a proper contact that they have initiated with any minor. Ma'am, I'm not able to understand how they're able to pay tax on behalf of the minor when firstly the agreement itself stands void from the beginning itself. Beta, they are representative in the sense that whatever the minor, suppose the minor is earning say 10 lakh rupees and his tax is say around suppose it is 10 lakhs and say it's 35,000.
So representative assessee means he will pay the tax on behalf of minor to the government. He will take 35,000 from minor and he will pay the tax to the government. He is representing that particular minor. Okay, so the government will have all the transactions with the representative assessees, not with the minors. Okay, minor has already made a contract that you will represent in all my dealings on my behalf to the government. You are liable to pay tax on my behalf. So representative is the person who will just represent it. It's a contract between the minor and the representative assessee. जैसे सपोज कोई 10 इयर्स का बच्चा है और उसको ऑलरेडी उसकी बहुत ज्यादा जायदाद है और उसने कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बना रखा है कि आप मेरे को रिप्रेजेंट करो बस, और क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, वो उसको चार्ज पे करता होगा, कोई भी फी पे करता होगा और जो भी उसका टैक्स बनता होगा वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी उसको सबमिट कर देता होगा गवर्नमेंट को. तो इसमें आपका डाउट क्या है? आई डिडंट गेट योर डाउट. Mom, the thing was that like we cannot enter into a proper agreement. Firstly, we cannot even have a contract with the minor. So that's the reason I said, how can we have a बेटा contract between? हाँ, minor will not have a contract, the guardian will have a contract. Yes, that is correct. The minor cannot have a contract, otherwise it will become a void contract. So the guardian, whosoever is the guardian of minor or whosoever is the guardian of lunatics, they will have an agreement with a proper, third party, that you have to pay the taxes, you have to assess the income of, the minors or the lunatics, and you have to pay the taxes to the government. Yes, ma'am. बेटा रिप्रेजेंटेटिव मींस द रिप्रेजेंट कर रहा है उस असेसी को, और डीम्ड असेसी मींस कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट जो उनके अब जैसे माइनर और लुनेटिक्स के जो गार्जियंस है वो उसको पकड़ रही है कि तुम डीम्ड असेसी हो, क्योंकि इसने कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना रखा अपना. किसी को तो पकड़ेगी ना गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है ना कि माइनर इनकम लेता रहेगा और गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं मांगेगी, या फिर लुनेटिक इनकम लेता रहेगा गवर्नमेंट टैक्स, किसको पकड़ेगी गवर्नमेंट? फिर माइनर्स और लुनेटिक्स को तो वो नहीं बोल सकती ना नॉर्मल एसएससी, ये लोग कैसे देंगे टैक्स गवर्नमेंट को? ईदर बाय मेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव assessee for themselves, or if there is no representative assessee, then the government will put their guardians in their places, that now you are responsible because you are the person who is care, you are doing all these things for the you actually आप इनको पाल रहे हो तो आप करो. फिर समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am, understood. ओके, और किसी को डाउट है इसमें? So the next fourth important term is income. So its definition is given under section 2 subsection 24 of the Income Tax Act 1961, and this particular definition is also inclusive, it is not exhaustive. ठीक है, इसका मतलब इन डेफिनेशन में अगर कोई रह जाती है ना इनकम और उसको इनकम कंसिडर किया जा सकता है तो वो इंक्लूड हो जाएगी इसमें. ठीक है, सो इसका मतलब कोई भी फायदा तुम्हें कुछ भी हो रहा है, कोई भी तुम्हें अमाउंट मिल रहा है रिकरिंग बेसिस पे या मतलब एज अ कैपिटल रिसीट फॉर्म में, सो आप उसको इनकम कंसिडर करोगे. ठीक है, सो it includes profits and gains, it includes dividend, it includes voluntary contribution received by a trust, या फिर perquisites in the hands of employee, any special allowance or benefit, city compensatory allowance, dearness allowance, any benefit or perquisite to a director. अभी ना एक एक चीज पे मत जाना, क्योंकि जब पढ़ोगे ना सैलरी तो सबकी ना डिस्क्रिप्शन आएगी, सारे बेनिफिट्स जो भी परक्विजिट्स जो भी मिलते हैं ना फायदे अलाउंसेस वगैरह एम्प्लॉयज को, वो सारे डिस्कस होते हैं. सिमिलरली जब पीजीबीपी आएगा तो सारी प्रॉफिट्स एंड गेन्स की एक्सप्लेनेशंस आएंगी. सिमिलरली जब कैपिटल गेन्स आएगा तो सारी कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशंस आएंगी. ठीक है, सो अभी बस ऊपर ऊपर से देख लो कि व्हाट इनकम इंक्लूड्स. ठीक है, सो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, एनी काइंड ऑफ अमाउंट, एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, gain or income or rent, all includes under income. ठीक है, so any sum chargeable, these are the sections. I don't know, insurance profit, banking income of a cooperative society, winning from lottery. देखो winning from lottery, although it is an illegal activity, right, but it is considered as an income. Then employees contribution towards provident fund, superannuation fund or star welfare fund, amount received under key man insurance policy, सब discuss होंगे.
जब पीजीबीपी कैपिटल गेन्स होगा ना, सब डिस्कस होगी. देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेंट्री, अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000 बाय वे ऑफ गिफ्ट. ठीक है, सो गिफ्ट में क्या होता है, अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्टेड. 50,000 से ऊपर का अगर आपको कोई भी गिफ्ट दे रहा है अपार्ट फ्रॉम योर इमीडिएट रिलेटिव्स. रिलेटिव्स में भी एक अच्छी खासी डेफिनेशन है. उसके बाद बहुत ज्यादा ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी हैं जिसमें नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज नहीं, अगर वो सारी चीजें भी नहीं पूरी होती और आपको कोई ऐसे ही गिफ्ट दिए जा रहा है तो दैट इनकम गिफ्ट विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, आपकी चार्जेबल हो जाती है. Then consideration for issue of shares, then advance money, compensation on termination of employment or modification of term of employment. और कोई भी ऐसे modification होती है तो that income is also considered as your income. Then assistance in the form of a subsidiary grant subject to the fulfillment of certain conditions. So these are few of the the categories of income which are defined under the Income Tax Act, but it is not exhaustive, it is inclusive in nature. So any kind of income which is left to be included is assumed to be included in this definition. ठीक है, so ये inclusive definition है. Next important term is gross total income. So as per section 14, income of a person is computed under the following 5 heads. So these are the 5 heads: income from salary, income from house property, PGBP, capital gains and income from other sources. ये चारों हम in detail करेंगे. ठीक है, जब इन चारों का सम हो जाता है it becomes a gross total income. ठीक है, this plus this plus this plus this plus this is equals to gross total income. जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है उसके बाद डिडक्शंस मिलती है. ठीक है, और डिडक्शंस आपकी होती है अंडर सेक्शन 80C to 80U. तो फुल फ्लेज्ड एक चैप्टर है डिडक्शंस का जो वी विल डिस्कस इन डिटेल, जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो अलाउड होती हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस होना. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ. जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर इन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रोविडेंट फंड्स या फिर कोई नेशनल पॉलिसी या फिर कोई नेशनल पेंशन पॉलिसी या फिर आप किसी को कंट्रीब्यूशन देते हो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देते हो या फिर कोई डोनेशन देते हो. वो सारी ना कुछ कुछ कैटेगरीज होती है आपकी 80C to 80U. जैसे आपने कोई होम लिया हुआ है लोन पे, तो उसकी जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन अलाउड होती है. तो ये सारी डिडक्शंस आपकी 80C to 80U में आती है. ये सारी आपके ग्रॉस टोटल इनकम बनने के बाद डिडक्शन से आपकी इनकम और रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, सो जो भी रिड्यूस होके बनती है आपकी इनकम वो होती है आपकी नेट इनकम. ठीक है, so there is important point is if income is not chargeable to tax, then any expenditure for earning such income is also not deductible. ठीक है, जैसे आपकी सैलरी है, आप अगर सैलरीड क्लास हो तो 80C के अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो इन म्यूचुअल फंड्स और इन डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सब की डिडक्शंस अलाउड है. बट अगर आप सैलरी ही नहीं करते तो वो सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी. तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ उन स्पेसिफिक चीजों के लिए आपको डिडक्शंस मिलती हैं, अदरवाइज आपको मिलती ही नहीं है. ठीक है, सो दिस इज वन स्टेटमेंट. Next important term is deductions and exemptions. So there is a slight difference between these two terms. Exemptions क्या होते हैं? It is usually given on a particular source of income. जैसे agriculture income is exempted under section 10 of Income Tax Act 1961. So exemption क्या होती है? एक particular income पे मिलती है. ठीक है, जैसे agriculture income आपकी exempted है. ठीक है, बट जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से जो रिड्यूस होते हैं ना वो सारी आपकी डिडक्शंस होती हैं. जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया था कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी और उसमें से डिडक्शंस 80C से 80U तक के एक साथ सारे डिडक्ट हो गए थे. ठीक है, तो डिडक्शंस हमेशा होती है जब पूरा ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है. एग्जेम्पशंस क्या होती है? वो हर हेड के जिस पर्टिकुलर इनकम पे एग्जेम्प्टेड होती है वो वहां से एग्जेम्प्ट होती चली जाती है. अब जैसे आपका हाउस रेंट है, हाउस रेंट हाउस रेंट अलाउंस. ठीक है,
आपको आपका एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस देता है, ठीक है। सो हाउस रेंट अलाउंस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉनेटरी बेनिफिट व्हिच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर। सो सैलरी के अंदर आता है हाउस रेंट अलाउंस व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स, बट उसका कुछ पोर्शन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो उसका कुछ एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी अमाउंट आता है, 3 उसके फॉर्मूलाज होते हैं, उसका लोवेस्ट जो भी होता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट क्या होगा, इनकम लिखी जाएगी और वहीं पे माइनस करके एग्जेम्प्ट लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो बाय इनकम चलता है वो, जैसे हाउस रेंट अलाउंस का इतना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का इतना एग्जेम्प्टेड है, एजुकेशन अलाउंस का इतना एग्जेम्प्टेड है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बट डिडक्शंस ऐसे नहीं चलती। डिडक्शंस क्या होती है, जब पूरी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी ना उसके बाद डिडक्शंस होंगी, ठीक है। सो ये स्लाइट डिफरेंस होता है बिटवीन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, ठीक है। सो इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड पोर्शन वहीं सब्ट्रैक्ट होके जो मेन कॉलम होगा उसमें सिर्फ नेट इनकम जाएगी, ठीक है। जैसे सैलरी का मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस का बताया है कि जो भी एग्जेम्प्टेड होगा वो वहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर जो नेट होगा ना बस वो आपकी कैलकुलेशन में जाएगा। जो कि आपकी डिडक्शंस होती है वो पूरी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से सब्ट्रैक्ट होती है, वो पहले कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होती। जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी तभी वो सब्ट्रैक्ट होगी। देन एग्जेम्प्ट इनकम विल नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम। एग्जेम्पशन हमेशा ना जब फॉर्मुलेस करोगे ना सैलरी में और जहां पे भी, हमेशा ऐसा होगा लोवेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो हमेशा लोवेस्ट होगा और जो लोवेस्ट हमेशा जो मिलता है ना वो होता है। इसका मतलब एग्जेम्पशन जो है वो कभी भी उस इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा वो उस इनकम जितनी हो सकती है जिससे उसका नेट जीरो अमाउंट जाए। पर जो डिडक्शंस होती है ना इट कुड बी हायर देन दैट, क्योंकि वो ग्रॉस टोटल इनकम पे लगती है। जैसे अब 80C में आपकी 1,50,000 की डिडक्शन है, तो 1,50,000 की आप डिडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, भले ही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम खाली 50,000 बने, तो आप 1,50,000 की यू कैन क्लेम। इट कुड बी ग्रेटर, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इट कैन बी ग्रेटर देन, ठीक है। Section 10 deals with all types of exemptions and deductions comes under section 80C to 80U, ठीक है। ये सब हम अब डिटेल में करेंगे बाद में। Next comes tax rebate. मैं फास्ट तो नहीं चल रही हूँ ना क्योंकि ये ना अभी बहुत रिपीट भी होता है, सो मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कंसेप्ट्स का। जब हम इन डिटेल जब पूरा पूरा चैप्टर करेंगे ना सैलरी वगैरह, जब आपको ये सारी चीजें ना फिर से रिविजिट होती जाएंगी। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना अभी तक जो डिस्कस हुआ है? नो मैम। ठीक है। सो टैक्स रिबेट क्या होती है? दीज आर एक्चुअली अभी एग्जेम्पशंस और हमने जो डिडक्शंस बात करी थी दे आर अप टिल ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपका डिडक्शंस होती है, फिर आपकी नेट इनकम आ जाती है। उस नेट इनकम पे आप टैक्स लगाते हो, ठीक है। जो आप टैक्स लगाते हो उसके बाद आपका कैलकुलेट होता है टैक्स पेएबल, ठीक है, कि आपको कितना पे करना है टैक्स। तो जो टैक्स रिबेट होती है ना वो टैक्स पेएबल में से मिलती है आपको, ठीक है। सो जो भी आपका पेएबल होगा, सपोज आपको 15,000 पे करने, तो उसमें अगर कोई रिबेट होगी तो वो आपको रिबेट उस पे करने के बाद मिलेगी। So a refund on taxes when the liability on tax is less than the tax paid by an individual is referred to as income tax rebate. So कोई भी आपने जो liability थी आपकी टैक्स पे करने की, आपने ऑलरेडी उस पे ज्यादा कर रखा है तो आपको रिफंड मिल रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ अ रिबेट which you are getting back. So whatever you are getting back from the government in the form of either refund or in the form of rebate, both are inclusive in the definition of income tax rebate. For example, अभी करंट सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि जिस भी इंडिविजुअल की 5 लाख तक की इनकम है उस पे उसको टैक्स नहीं पे करना है, जो भी मतलब उसको टैक्स नहीं पे करना है। अभी ऐसी एक स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट आपकी स्लैब रेट्स क्या कहती हैं कि 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्टेड है, 2.5 लाख से 5 लाख तक पे 5% है, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी और भी करेंगे बट अभी एक बस ध्यान से सुनो कि अभी जो स्लैब रेट्स है ना इंडिविजुअल की है कि 2.5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, उसके बाद अगले 5 लाख तक पे 5% है। तो सपोज मेरी 5 लाख सैलरी थी
2.5 लाख मेरा एग्जाम्प्ट हो गया, 0 है उस पे, बचा 2.5 लाख, ठीक है, उस पे है मेरा 5%, यानी सॉरी एक 0 और लगेगा शायद, 2.5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये क्या हुआ? Ma'am, you're taking 25,000 by mistake. अच्छा मैं कैलकुलेशन में कम 0 ले रही हूँ, सॉरी, 2,50,000 5 डिवाइड बाय, हाँ 12,500, ठीक है। सो ये मेरा टैक्स एज पर द टैक्स स्लैब रेट्स मुझे इतना पे करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, 5 लाख तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब ये 12,500 वो क्या दे रहे हैं हमें, रिबेट, राइट। दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ रिबेट, कि हालांकि आपका टैक्स बनता है बट गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं ले रहे आपसे, हम आपको ये रिफंड दे रहे हैं, हम आपको एज अ टैक्स रिबेट दे रहे हैं कि आप मत दो हमें टैक्स, ठीक है। तो ये यूजुअली आपकी टैक्स पेबल पे होती है, ठीक है। जैसे आपका 5 लाख पे आपको टैक्स पे करना था, तो 5 लाख पे 2.5 लाख आपका एग्जाम्प्ट हो गया, 2.5 लाख पे 5% आपको पे करना था, 12,500 हम आपसे नहीं ले रहे, ठीक है। सो दिस इज अ टैक्स रिबेट, and it's important point to note that rebate will be applied to the total tax before adding the health and education cess of 4%. So this is without adding. Usually क्या होता है, आपका जो टैक्स पेबल होता है ना उसके बाद लगता है प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, और उसके बाद आपके एक्चुअल में इनकम टैक्स पेबल आता है आपका, ठीक है। तो रिबेट आपको इससे पहले ही मिल जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगी, और जब हम फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस करेंगे तो ये जब रिपीट होंगे तो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी रिबेट का मतलब है कि आपको जो टैक्स पे करना था उसमें से कुछ अमाउंट अब आपको हमने रिबेट कर दिया। Now next come important thing, that is rounding of income. This is given under section 288A. So the taxable income shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees, and for this purpose any part of the rupee consisting of paisa shall be ignored, and thereafter if such amount is not a multiple of 10, then if the last figure in that amount is 5 or more, then the amount shall be increased to the next higher amount which is a multiple of 10, and if the last figure is less than 5, then the amount shall be reduced to the next lower amount which is a multiple of 10. Very very important, मतलब पूरे इनकम टैक्स के पेपर में हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका नेट इनकम बनेगा वो हमेशा राउंड ऑफ होगा, और राउंड ऑफ किसका होगा, इन द मल्टीपल ऑफ 10। कैसे डिसाइड करोगे कि इसको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 करना है या लोअर मल्टीपल ऑफ 10 करना है? सॉरी 19 Are you asking a question or he has unmuted himself unknowingly? Okay, fine. Yes. तो जो आपकी नेट इनकम होगी, इट इज ऑलवेज, जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी बेसिकली, इट इज ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ 10। हमेशा याद रख लो इस चीज को, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट होते हैं, वो हमेशा होगी इन द मल्टीपल ऑफ 10। और कैसे डिसाइड करोगे कि इसको अपर मल्टीपल ऑफ 10 रखना है या लोअर वाले पे, तो हमेशा उसके जो डेसिमल वाली चीजें उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। और उसकी जो लास्ट वैल्यू है ना उसको देखो, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कर दो, अगर 5 से कम है तो उसको लोअर पे, ठीक है। सो सपोज दिस इज योर इनकम बिफोर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। ये सारी आपकी इनकम्स है, एक बार ट्राई आउट करो कि इसकी इनकम राउंड ऑफ के बाद कितनी होगी, ठीक है। इग्नोर ऑल द डेसिमल्स, just ignore all the decimals and just consider the last value of the last value of the amount, and see whether it is 5 or more or less than 5. Just try it out. Round off करनी है हमें incomes, and that too in the multiple of 10.
First is 780520. 780520. Very good. So first one is correct. Since it is 5, so we'll take to the next multiple of 10. So it will be 780520. For next it is 780 510. बिल्कुल करेक्ट. उससे नेक्स्ट वाली 780513.56. Yes, so it will also be 780510 because this is 3, which is less than 5. So it will be a lower multiple of 10. What about this 780519? Yes, so it is 780520. So always remember the taxable income will always be in the multiple of 10 and always write this section 288A. Just write rounding of income as per section 288A or round off लिख दो. ठीक है, so this is the answer. Almost everyone has answered it correctly. Then comes rounding off of tax. This is given under section 288B. इसमें क्या है, जो टैक्स पेबल करना है ना वो भी राउंड ऑफ होना चाहिए. इसका मतलब टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स बनेगा और टैक्स बनने के बाद जो भी आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, जो आपका लास्ट में अमाउंट पेबल होगा, इट विल ऑलवेज बी राउंडेड ऑफ. और जो राउंडिंग ऑफ होगा, दिस विल ऑलवेज बी ऑन द सेम lines which is there under section 288A. तो उसी मल्टीपल ऑफ 10 में होगा. उसी तरीके से आपको जो भी पॉइंट्स हैं डेसिमल्स वाले वो इग्नोर करने पड़ेंगे और आपको मैच करना पड़ेगा लास्ट डिजिट. If it is 5 or more, take it to the next multiple of 10. If it is less than 5, take it to the lower multiple of 10. So the calculation, the line of calculation is same. It is just that आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेबल इट ऑलवेज राउंडेड ऑफ. ठीक है, आप कभी भी बिना राउंड ऑफ में फिगर्स मत लिख देना, आपके अननेसेसरली मार्क्स कटेंगे. हमेशा उसको इन अ मल्टीपल ऑफ 10 आपको राउंड ऑफ करना है. So you can see the format. This is the format for computing the tax liability. See, सबसे पहले आपकी 5 heads आते हैं. Income from salary, income from house property, PGBP, capital gains and income from other sources equals to gross total income. जो भी आपकी exemptions होंगी वो इन्हीं 5 heads में अपने अपने head से exempt हो जाएंगी. ठीक है, तो जो भी exempted होती है वो यहीं पे आ जाती है. इस पर्टिकुलर कॉलम में वो एंटर नहीं करती है. जो भी आपकी इनकम थी माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, जो भी नेट होगा वो आपके इस कॉलम में आ गया. फिर आती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, इन सबका एड ऑन. इसके बाद आपकी होती है डिडक्शन सब्ट्रैक्ट. 80C से 80U में जितनी भी आपकी डिडक्शंस होती है सारी की सारी यहाँ आके एड ऑन हो जाती है और जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट होती है. फिर आती है आपकी टैक्स लाइबिलिटी कि दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी. उस टैक्स लाइबिलिटी पे बनता है टैक्स कि आपको कितना टैक्स पे करना है. सो वो टैक्स जो पे करना होता है ये हमेशा डिपेंडेंट होता है अपॉन द टैक्स रेट्स व्हिच आर देयर इन योर असेसमेंट ईयर. ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे. टैक्स बन गया, जो भी बन गया उसमें लेस हो जाती है रिबेट अगर कोई भी मिली हुई है अंडर सेक्शन 87A. रिबेट मिल गई, उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट. और फिर होता है आपका एड सरचार्ज. सरचार्ज क्या एक चीज होती है ये अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फिर आपकी इनकम और सरचार्ज दोनों एड ऑन हो जाती है. उसके बाद होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है एट द रेट ऑफ 4%. उसमें से उसके बाद कोई भी रिबेट अंडर सेक्शन 86, 89, 90, 90, 91, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस बट कुछ कुछ कैपिटल गेन्स की भी रिबेट्स होती है, वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी. ठीक है, इसमें से कुछ कुछ रेलिवेंट है आपके सिलेबस की, कुछ कुछ नहीं है. सो यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेबल होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. फिर आपका टैक्स होगा, जो भी आपका देना है आपको उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे जो भी टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो. ठीक है, तो सारे प्रीपेड टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आएगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो कि आपकी इन द फॉर्म ऑफ ये भी हो सकती है कि आपको पे करना है या भी ये इस भी फॉर्म में हो सकती है कि ये आपको रिफंड मिलेगा. ठीक है, सो यूजुअली दिस इज द फॉर्मेट. हम अपने सिलेबस में इंडिविजुअली जाएंगे. पहले हम सैलरी करेंगे, कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे हाउस प्रॉपर्टी होती है, कैसे पीजीबीपी होती है, कैसे कैपिटल गेन्स, कैसे अदर सोर्सेस. जब ये सारी चीजें हम सीख जाएंगे उसके बाद हम इस पूरे पे आएंगे.
कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर एक इंडिविजुअल की इनकम को असेस करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। बट ये फॉर्मेट है, ये याद कर लेना सब अच्छे से, ठीक है। तो एग्जिस्ट ये रेट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनी डाउट्स टू एनीवन?